Hello friends, welcome to Adit1131P YouTube channel. Okay. So guys, this one is a Lenovo ThinkPad series laptop. Okay, and its model is E430. Okay, and its MBD part number you can see LA-8131P. Okay, in this board, see right now the condition is it's getting on. Okay, wait, I will show you. Okay. This is the power button. Okay, see, DC supply is taking ampere, and you can see on laptop is on but having fan error. You can see it's having fan error. Okay, because I have not connected the fan. See, wire is disconnected. Okay, I have not connected the fan, that's why it's giving the fan error. See, again I will show you. Just connect adapter. Okay, fan is not connected. Okay, I'm just triggering the MBD. Just triggering amp, good amp, and display also okay, but having fan error because fan is not connected. Okay, now let's connect the fan and see what happens. See, I have connected the fan. Okay, pin is connected properly. Now let's connect again the DC supply and trick the MBD. Okay, see, fan is moving. Okay, you can see fan is moving and stopped. Okay, and see on the DC supply it's having a good amp. Okay, but on laptop you can see there is no display. There is no display. Okay, see on the DC supply it's having a good amp. Okay, but it's no display. This is the main problem of this laptop. Okay, without CPU fan this laptop is working well but giving fan error because fan is not connected. Okay, but with fan, see, fan is again spinning but no display. See on the amp it's also taking a good amp but no display. If I remove the fan, see, again I removed the fan, disconnected it. Okay, now connect adapter again. Now take the MBD. See on the DC supply it's taking ampere, and on laptop it's getting on but having fan error. See guys, I have already checked with a different fan. Okay, but problem is same. This is not the problem of CPU fan. Okay, this is not the problem of CPU fan. This is the problem of BIOS. Okay, ये problem है BIOS का. ठीक है. In this board comes with two chips. Okay, two BIOS chip. One is 4 MB and second one is 8 MB. U5 and U6. Okay. तो अब क्या है इसके बारे में थोड़ा हम बताना चाहेंगे इस बायोस के बारे में। जैसे आप लोगों को पता होगा थिंकपैड सीरीज़ में, ठीक है, थिंकपैड सीरीज़ और इन HP कॉर्पोरेट लैपटॉप सीरीज़ वाईफाई नॉट सपोर्ट का भी एक एरर आता था पहले, जिसमें ना हम लोग बायोस में वाइट लिस्टिंग करते थे, तब वो मेरा बायोस काम करता था और डिस्प्ले आता था और वाईफाई कार्ड मेरा सपोर्ट करता था। ठीक है, मीन्स क्या है, जिस लैपटॉप में ना वाईफाई नॉट सपोर्टेड का एरर आता है उस लैपटॉप में ना हम लोग बायोस को ना मॉडिफाई करते थे, मीन्स वाइट लिस्टिंग उसमें करते थे हम लोग। ठीक है, जिसको ना वाइट लिस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इस लैपटॉप का ना लॉजिक क्या है वो हम बता दे रहे हैं। अगर आप इसका बैकअप बायोस
या तो ना ब्रांड न्यू बायोस आप बना के ना डालोगे तो भी ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सपोज करो कि ना आप सेम मॉडल का ना बैकअप बायोस आप रखे हुए हो अपने पास, ठीक है, 8131P का, ठीक है, सेम है बायोस बैकअप आपके पास वर्किंग का ना आप निकाल के ना रखे हो, आप उसको ना फ्लैश करोगे तो भी ना सेम कंडीशन रहेगा आपका इसमें। मीन्स क्या है, विदाउट फैन डिस्प्ले आएगा, विथ फैन डिस्प्ले नहीं आएगा। ठीक है, तो ना क्या है, इस मॉडल में थोड़ा बायोस में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, उस बायोस को ना हम ऑलरेडी मॉडिफाई कर चुके हैं और अब फ्लैश करेंगे ना इसमें और आपको ना दिखाएंगे कि ना प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को ना ये दोनों बायोस फ्लैश करना है। ठीक है, 4 MB एंड 8 MB, क्योंकि ना दोनों का ना दोनों बायोस मेरा आपस में कंबाइन है। ठीक है, इसलिए दोनों को फ्लैश करना पड़ेगा, सिर्फ मेन को ना फ्लैश करने से ना नहीं होगा, साथ में आपको ईसी को भी फ्लैश करना पड़ेगा, मीन्स 4 MB एंड 8 MB बोथ। ठीक है, तो इधर सिस्टम में ना देखिए मेरा, ठीक है, ये ऑलरेडी मॉडिफाई करके ना रखे हुए हैं इसका बायोस। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। ठीक है, बायोस चिप निकालते हैं दोनों। ठीक है, 1 बाय 1 निकाल के प्रोग्राम कर लेते हैं। बोर्ड को ना निकालने का नीड नहीं है, ऐसा ही काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये मेरा U5 है। U5 का साइज़ है 25Q64, ये मीन्स दिस साइड 8 MB है। ठीक है, याद रखना। और ये सेकेंड वाला ये होगा 4 MB। ठीक है, दोनों को हम प्रोग्राम करेंगे। भाई मेरे पास तो ना एक ही है प्रोग्रामर, यही SVOD। जिनको ना चलाना आता है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है, और जिनको नहीं आता है भाई तो उनके लिए तो ये बहुत ही ख़राब है। अब पतंजलि है तो ना चूना है तो ना क्या है। भाई देखो, कोई भी ना प्रोग्रामर आप रख लो, ठीक है, यूज़ करना नहीं आता है तो भाई वो तो ना बर्बाद है फिर आपके लिए। ठीक है, तो क्या है, सिंपल सा, प्रोग्रामर को ना मत दोष दो, सबसे पहले चलाना सीख लो खुद से ज़्यादा बेटर होता है वो। ठीक है, चलो ओके डन। ये रहा मेरा, इसका रीड करते हैं भाई। ठीक है, ये चिप मैंने डाला है 25Q64 8 MB वाला। ठीक है, रीड आईडी हो गया, रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे को ना बैकअप का नीड नहीं है इसका। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसमें अपना बायोस फ्लैश करेंगे। ठीक है, तो डेस्कटॉप में था मेरा, नाम है इसका 8131P फैन मॉडिफाइड। ठीक है, तो सबसे पहले 8 MB का चिप है ये, तो 8 MB डन करते हैं, राइट करते हैं 8 MB। चलो भाई, वेरीफाई हो गया, मीन्स चिप ओके है, चिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया मेरा 8 MB का चिप रेडी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 4 MB वाला ना, ये दोनों बायोस कंबाइन है। अगर आप इसको हेक्स वर्कशॉप या तो ना HXD जो भी आप यूज़ करते हो, आप उसमें चेक करोगे तो आपको दिखेगा वो चीज़। ठीक है, ये भी रीड आईडी करते हैं। ठीक है, रीड का नीड नहीं है, फिर भी रीड करना है तो देखो रीडिंग भी ना प्रॉपर है, मतलब चिप ओके। ठीक है, हम डायरेक्टली फ्लैश करेंगे इसको, इसमें डालेंगे 4 MB क्योंकि ये मेरा 4 MB का चिप है। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्या है, इधर अभी राइट हो रहा है। ठीक है, उसको राइट होने देते हैं। अब जैसे देखिए, ये अगर हम लोग मैं क्या हेक्स वर्कशॉप यूज़ करता हूँ तो इसमें दिखाता हूँ 8 MB को। देखो ये मेरा ME रीजन हुआ। ठीक है, मीन्स इसका मतलब होता है कि ना मेरा इसी बायोस में ME रीजन है। ठीक है, 8 MB वाले में। अब देखो, अप में ना डेटा है, बॉटम मेरा ब्लैंक है इसका, क्योंकि ये कंप्लीट बायोस नहीं है। ठीक है, अब जैसे 4 MB का ना देखो, बाकी का ना रेस्ट पार्ट मेरा यहाँ से ना स्टार्ट है।
तो ना क्या है, दोनों बायोस को ना मॉडिफाई करके डालना पड़ेगा, सिंगल से ना नहीं होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, सिंगल से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपको ना मॉडिफाई दोनों ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ये राइट हो रहा है। ओ, एरर दे दिया ये कुछ, रुको दोबारा रीड करते, इसीलिए मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम कर रहा था। वेट वेट, दोबारा रीड आईडी किया। ठीक है, ये रीड ओके। ठीक है, ये 4 MB का ही चिप है ना, वापस से डालते हैं, ये 4 MB डन, ये हो गया राइट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं। ठीक है, डन, दिस टाइम डन। ठीक है, दिस टाइम डन। दिस टाइम डन। हैविंग सम एरर इन राइटिंग, क्या हो गया भाई? चिप दोबारा क्लीन कर लूँ एक बार, रुको चिप दोबारा क्लीन कर लेते हैं। ये है तो मेरा 32 4 MB का ही, और दोबारा चिप क्लीन कर लेते हैं। Voltage is proper. Open 4 MB डन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक तो ये अब करते हैं एडिट, नहीं तो भी चिप चेंज कर लेंगे, लेकिन चिप का ये प्रॉब्लम हो सकता है। राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम, बफर रीडिंग, ये हो गया राइटिंग चालू, इस बार तो स्पीड ठीक है। देखो वेरीफाई भी हो गया, मीन्स चिप में क्या डस्ट वस्ट रह जाता है ना कभी, उसके कारण भी ना प्रॉब्लम होता है। क्लीन किया चिप, इसलिए ओके हो गया। ठीक है, अब भाई इसके लिए हम बोल देंगे मेरा प्रोग्रामर ही पतंजलि है, तब तो भाई अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तो ये हो गया भाई कि ना नाचना आता नहीं, और बोल दिया भाई आंगन ही टेढ़ा है, हिंदी का कहावत है। चलो चिप बिठाते हैं। ये 4 MB डन, ये मेरा 8 MB चिप डन। और भाई इस लैपटॉप का ना स्टोरी बहुत बड़ा है, यही फ़ैन के लिए, लेकिन क्या मेरे को ना स्टोरी सुनाने का ना कोई शौक़ नहीं है और ना कोई मूड है, इसलिए डायरेक्टली हम टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ना क्या है, कुछ कुछ सीरीज़ के ना मॉडल में ना बायोस का ना रोल थोड़ा चेंज हो गया है। ओके, समय के साथ सब कुछ चेंज हो गया, इसलिए खुद को ना अपग्रेड रखिए बस, और क्या। और अपग्रेड करना है खुद को तो भाई गूगल है, लोग हैं, मिलो बातें करो, बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, फिर जरा प्रॉपर दिखा ले रहे हैं क्लीन करके। चलो अब इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए लोग क्या करेंगे, फ़ैन बदलते रहोगे, ये आईसी बदलोगे, वो आईसी बदलोगे, लेकिन क्या ये आईसी का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी भी आईसी का। चिप प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो गया। चलो ठीक है, पहले क्या फ़ैन खुला ही है मेरा अभी भी, इट्स ओपन नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो पहले डिस्प्ले देख लेते हैं दोबारा। ठीक है, कि मेरा डिस्प्ले ओके है या नहीं, फिर फ़ैन कनेक्ट करके भी ना दिखाते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। ठीक है, दोनों कंडीशन में। ये किया बोट ट्रिक
एम खींच रहा है डिस्प्ले का, ये देखो डिस्प्ले आ गया, फैन एरर, ठीक है, क्योंकि बिकॉज माई फैन इज नॉट कनेक्टेड, ओके, फैन नहीं कनेक्टेड, इसलिए फैन का एरर है ये, ओके। नाउ रिमूव, लेट्स कनेक्ट द फैन, ओके, फैन कनेक्ट हो गया है भाई। अब नाउ कनेक्ट, लेट्स चेक अगेन, देखो फैन स्पिनिंग, डिस्प्ले ओके, इट्स अ डेट एंड टाइम एरर, मीन्स RTC एरर, इट्स नो फैन एरर, ओके, फैन एरर गॉन, फैन इज कनेक्टेड, ओके, प्रॉपर, फैन मूव भी ना किया अभी। अब क्या देखो, फैन क्या हीट सिंक के ऊपर है ना, जब जब CPU हीट होगा मेरा तब फैन मूव करेगा, अगेन फैन इज स्पिनिंग, ओके, एंड डिस्प्ले ओके, ओके। सो this is the problem of BIOS, okay, not the problem of any chip, means fan related chip or IO whatever, ठीक है, जो भी, तो क्या है BIOS का रोल थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए केयरफुली किसी भी ना बोर्ड पे थोड़ा काम कीजिए, ठीक है, ओके। थैंक यू गाइस, कुछ नए चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है, कुछ नए वीडियोस में, ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। इट्स जस्ट अ डेमो फॉर यू ऑल, ओके, इट्स जस्ट अ डेमो वीडियो कि ना कुछ नया आने वाला है, अब क्या होगा वो वेट कीजिए, ठीक है, थैंक यू। So if you want to get the knowledge on BIOS modding, you can just purchase our Hindi edition. All the videos are available already, and along with that there are many case studies as well as some videos theoretically on impedance and voltages are also there. With the help of DSO, how you can check the motherboard are also included on those videos. So complete package is of around 40 plus videos. You can, if you like, you can just purchase them. It is a full of knowledge, you can enjoy the videos, and it is 100% money back videos. Your money will not be wasted for that. So if you like to join our BIOS and schematics group, you can also contact us for joining that, as well as we also have a training program of laptop chip level, advanced level. If you like to join that, you can also come and join that. So thanks for watching Aditya 11 Triple T YouTube channel. If you like our channel, do hit the subscribe button, like, share and comment. Thanks a lot.